So this is the first if block. So for this first if block, we have this first condition. We have one more if block. So for this, we have this block. Obviously, whatever we are going to write in this if block, that will specify only the true condition or the condition which is going to be evaluated as a true. False part will go in the else. So as an inner part means this is a second loop. This is the first one and this is the second one. So this else part of this second if is this one, and else part of this first one is here. So this is this, if we are going for the true, then it will come for the false. So false is nothing but the else part. If this condition is going to be true, this is that your if condition is true. If is your true. Same here, if this if condition is true, it will move in this direction. It is false, it will move in this direction. So yesterday we had seen this if else statement. We had seen the program to find the greatest among the three by using the AND operator. We will take it. What we are going to perform? We are going to perform the program for finding greatest among the numbers. Okay. So initially we have to define three variables: I, j, k. So CLR SCR. Initially we have to display the message that user has to enter the three different number for finding the greatest number. So enter three numbers to find greatest among three. कल जो आपने किया था उसका मैं आपको एक अल्टरनेटिव और दिखा रहा हूँ अभी. There are, in every program we have multiple ways to solve a problem. We have to find out the solution. That's the important thing. It doesn't make any difference how you are creating or how you are getting the solution. So first variable is I, j and k. Okay. Now you had performed the program just like if I greater than j and I greater than k. If this is the condition, which means that your first we'll just write first number is greater. That's it. Second condition, if, or we'll write else if. Initially we have three different variables, that is first value as I, we have three numbers I, j and k. So what we are doing, initially we are comparing this I with the j, that is I is greater than j, and second one is we are checking for this, and second part is that we are checking for I greater than k. We are checking here two times. First one is with the I with the j, and second one is we are comparing I with the k. If both these conditions are true, for example 10, 6 and 7, if both these conditions are true, initially check I greater than 10 greater than 6, yes, condition is true. Condition is true here. I greater than k, value of I is 10, here is
8, so 10 is greater than 8, it's okay, this is condition true. So if we are using this AND operator, which means that if both the conditions are evaluated to be true, then only it will execute. If you are using the OR operator, so in that case, if either of the condition is true, but here we have to check whether the value of I is greater than j and also the greater than k. So we are using here I greater than j and I greater than k, and we are checking two conditions with the help of the AND operator. So if I then j एक space and I greater than j, और इसको ब्रैकेट में डाल दो, हो गया. So this is else if में हम check करेंगे. Now we will go for the other condition, that is this is for the I. Now we will check for the j. So same here we have to check whether the value of j is greater than I, and second one we have to check whether the value of j is greater than k. If both these conditions are satisfied to be true, just like if j greater than I, double AND मतलब AND operator, j greater than k. In this condition, your value of j is greater. So suppose we take this as 56, this is 87, and this is 56, 9. So in this first condition, the value of j is how much? Is 87. 87 is greater than 56. Yes, it's true. Second, j greater than k. The value of j is 87. So this will be I, j, sorry, I, j, and k. I, j, and k. So here value of j is 87. 87 is greater than 59. We are checking both these conditions are evaluated to be true. So this can be done with the help of the AND operator. So here we will check value of j is greater than I, j greater than I, and j greater than k. If this condition evaluate to be true, so what we have to display, the second number is greater. Number is greater. It's okay. If both the previous conditions are to be false, means if I is not greater, means I is not greater, j is not greater, so we will have only one condition, that is printf third number is greater. So we will execute it. So first number is 67, 56, and 45. So obviously result will, what will be result? Third number should be greater. So third number is greater. We'll check one more time for the second number. So 45, 67, and 54. So second number is greater. It's okay. You have to check for every parameter whether it is working properly or not. So we check for the first number. So if whatever we had put the condition for 3 times, if first whether the value of I is greater, second for j is the value of I is greater, and third for the greater. So we have to check for everything. Now अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, एंड लिखा. एंड में क्या किया कि हमने दो कंडीशन को एक साथ मिक्स कर दिया. अब ऐसा हो सकता है कि आई डोंट वांट टू यूज दिस एंड कंडीशन, सो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज दिस नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक. यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ दो कंडीशन को हमने यहाँ पर अब सेपरेट कर दिया, नहीं किया हमने, ध्यान देना. दो कंडीशन को क्या कहता हमने एक साथ लिख दिया था. यहाँ देखिए दोनों कंडीशन रखी हुई है मैंने. तो
ठीक। सो ये एक हो गया और एक हमारे पास में है ये सिंगल वाला। ठीक, अब देखिए हमने इसके पहले जो येलो में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि टू कंडीशंस आर स्पेसिफाइड इन अ सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ द एंड ऑपरेटर। यहाँ पर कैसे होगा देखिए, इनिशियली इट विल चेक फॉर दिस कंडीशन आई इज ग्रेटर देन जे, अगर होगा तो ये यहाँ पर जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चेक करेगा सेकंड कंडीशन, और दोनों कंडीशन ट्रू होती है देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। So if you are using this, multiple condition can be concatenated or add with the help of this and logical operators जो होते हैं हमारे पास में and or not. So and operator is connected here, और इसका एक और हमारे पास में एक अल्टरनेटिव हमारे पास में यहाँ पर if I greater than j। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है अंदर आएगा यहाँ पर, इट विल चेक फॉर द ट्रू, अगर इफ बोथ दिस कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल गो एंड चेक फॉर दिस। अब जब इनर साइड में आएगा तो क्या हुआ कि इनिशियली वी हैड गिवन द कंडीशन, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ही ये अंदर आएगा, और ये ट्रू होता है तो ही ये डिस्प्ले होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू, और अगर सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है सो ये एग्जीक्यूट वहां पर नहीं होगा। सो यू कैन आइदर यूज दिस मल्टीपल टाइम, इफ मल्टीपल टाइम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको कॉन्केट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज एम्परसेंड एंड, कि दोनों का वहां पर यूज करना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्केट करने पड़ेंगे, इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, दोनों इस तरह से कॉन्केट होने चाहिए। ठीक, एनी डाउट इन दिस? नो सर। आगे चले? यस सर। यस, चलो आगे चलते अभी हम। ये प्रोग्राम, ये पीडीएफ वैसे मैंने आप लोग को शेयर की है, इसमें आप लोग को उसका मिल जाएगा आंसर। अब मल्टीपल इफ को यहाँ पर अगर किसी को मिक्सअप करना है, इफ एल्स लैडर बोलते हैं जिसमें मल्टीपल इफ, जैसे हमने पहले इफ लिखा, उसके बाद फिर से एल्स, इफ, कितनी भी कंडीशन हो लिखते जाइए आप, एल्स इफ, फिर से लिखिए एल्स, उसमें एक स्पेस इफ, फिर से लिखिए जितने भी हो गए एल्स इफ, लेकिन लास्ट में एक एल्स लिखना मत भूलना, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ट्रू कंडीशन है तो इसको फॉल्स में लेके जा रहे हैं। हर एक का एक ना एक, हर एक कंडीशन की आइदर इट कैन गो विद द ट्रू और इट कैन गो विद द फॉल्स, सो वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। सो this true will be represented with the help of the if block, so for false we have to represent the else part। और लास्ट वाला इसलिए हम यूज करते हैं कि भैया हम why our result is not coming, so that can be replaced shown with the help of that। फ्लो चार्ट इस तरह से हम उसको बनाते हैं, अगर ट्रू होती है कंडीशन तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फॉल्स होगा तो इसको आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्विच की तरफ। स्विच इज ऑल्सो जस्ट लाइक द इफ स्टेटमेंट, इसमें भी सेम होता है, थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, बाद में मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि व्हेन वी कंसीडर द नंबर ऑफ इफ एल्स लैडर, ये वाला यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे कंडीशंस हम एक साथ लिख रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है बिकॉज कि ये इफ यहाँ पर आ गया, दूसरा एल्स इफ आ गया, फिर से एल्स इफ आ गया, फिर एल्स इफ आ गया, और मल्टीपल हो गया तो इट विल गो ऑन, और लास्ट में हम एल्स शो करेंगे। तो ये उसमें ट्रैक रखना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कि हाउ मेनी स्विच स्टेटमेंट्स वी हैव, हाउ मेनी blocks we have, how many statements we have specified, everything we have to specify there, so it's quite difficult to maintain all these things with the help of the if block। So this can be easily maintained with the help of this switch। switch मतलब कि जैसे हमारे बटन्स होते हैं, एक तो ऑन कीजिए ऑफ कीजिए, आपको किस स्विच पे जाना है, कहाँ पर जाना है, दैट कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। सेम होता है इफ जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, आपको बताता हूँ आपको। To overcome this, C has a built-in multi-way decision making known as the switch। मैंने आप लोग को बताया इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन वी हैव टू राइट दिस सिंटैक्स, इसके बाद आपको लिखना है एग्जाम्पल।
ये आपको हर एक इसमें लिखना होगा। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, सी पढ़े, उसके बाद आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे, उसके बाद जावा पढ़िए, आप डॉट नेट पढ़िए। इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन और द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर things which is asked in the examination. After that you have to go for the syntax and then we have to go for the example. So here what we have tried, switch is the keyword, so this is switch keyword यहाँ पे लिखा हमने। सो स्विच इज द कीवर्ड और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा ये मैच होना चाहिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो, सॉरी, केस वैल्यू के साथ में। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये केस वैल्यू के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, कोलन। ये कोलन हमेशा होना चाहिए, कोलन नहीं दोगे गलत हो जाएगा, कोलन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे और जब हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद वी हैव टू राइट द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक नहीं लिखा तो इससे क्या होता है, मैं आपको आगे कर चल के आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंटैक्स में होता है कि यहाँ पर ब्लॉक वन मतलब जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं फॉर द केस वन वी हैव टू राइट इन दिस ब्लॉक वन, और लास्ट में हमको उसको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक मतलब उसको तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जंप करेगा ये, एक मिनट, जब भी ब्रेक होता है ये जंप करेगा टू दी यहाँ पर, मतलब कि रेस्ट ऑफ द कंडीशन को यहाँ से क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने क्या लिखा था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई इज इक्वल्स टू 1, वही यहाँ पर चेक होता है इन दी एक्सप्रेशन। और लाइकवाइज ये चेक होता है यहाँ पर केस, हम एक्चुअली लिखते हैं यहाँ पर ऐसे है, केस स्मॉल में 1 अगर नंबर होगा तो, और कैरेक्टर्स होगा तो इसको हम लिखेंगे सिंगल कोट में। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी राइट दी ब्रेक, उसको वहाँ पर स्कोप खत्म करने के लिए उसको हम ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक लिखने के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्टली ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो जहाँ पर खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा क्योंकि हमको बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। अब बोलोगे कि सर बाकी के भी हमको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आपको स्विच में जाने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी के स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है सो इन दैट केस यू डोंट हैव टू राइट दी स्विच। ठीक, चलो तो अब एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा जल्दी से। सिंपल स्विच। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो पहले ऊपर में कमेंट डाल के उसका जो भी हेडिंग होगा प्रोग्राम का वहाँ पे नाम लिखोगे आप, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। वेरिएबल ले लेते हैं हम, स्केलर एसटीआर क्यों लिखते हैं कोई बताएगा। ओके, प्रिंटफ का यूज क्या होता है, लो ये हो गया। यहाँ पर एक नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे और हमने यूजर को बोला है कि भैया यू हैव टू एंटर द नंबर बिटवीन वन, यू हैव टू एंटर एनी नंबर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है।
हम 1 2 3 उसको डालने के लिए बोला। यहाँ पर हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो साइमल्टेनियसली मैं अभी ये होने के बाद इफ स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, या पहले इफ बता देता हूँ मैं। देखिए अब क्या ऐसा होगा, इफ चेक कर रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 अगर होगा तो ये यहाँ पर आएगा और ये डिस्प्ले करेगा प्रिंट एफ। यू हैज एंटर्ड 1। सिंपल, ये आपको आंसर मिलेगा। दूसरा हमारे पास में है इफ जे इज इक्वल्स टू 2, अगर ये एंटर करते हो तो यू विल गेट द रिजल्ट प्रिंट एफ। लिखते चलिए साथ में, एंटर्ड 2। नेक्स्ट वन, तीसरा भी लिख लेते चलो। इफ, सॉरी यहाँ पर आएगा आई, सो आई इज इक्वल्स टू 3, विल गेट प्रिंट एफ। एंटर्ड 3, और एक डाल देते हैं हम एल्स। प्रोग्राम कभी भी लर्न नहीं करना, उसका सिंटैक्स ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। प्रोग्राम लर्न नहीं करता कभी भी, बस उसका सिंटैक्स ध्यान में रखिए और आगे चलिए। अगर 1 2 3 हमने एंटर नहीं किया, इसका मतलब है कि यू हैड एंटर द रॉन्ग ऑप्शन। यू हैज रॉन्ग नंबर। ठीक, यहाँ पर देखिए सिंपल प्रोग्राम बनाया हमने। क्या किया हमने, प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 1 एंटर करोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि यू हैज एंटर्ड 1। अगर 2 एंटर करोगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि यू हैज एंटर्ड 2, और 3 एंटर किया तो आपको मैसेज मिलेगा 3। और अगर 1 2 3 के अलावा अगर आपने कुछ और एंटर किया तो यू विल गेट द एरर मैसेज, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एल्स पोर्शन। तो कंपाइल करते हैं। 1 एंटर किया, गेट ch नहीं लिखा हमने। 1 एंटर किया, प्रॉपर वर्क हो रहा है। हर बार चेक करना जितने भी आपने ऑप्शन डाले हर एक पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा करते हम कभी कभी कि नहीं सर हो रहा है, छोड़ देते, वैसा नहीं, पूरे इसमें चेक करना। अगर मैंने 6 एंटर किया, यू हैज एंटर द रॉन्ग नंबर। चलो ये हमने क्या किया, एक सिंपल इफ से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें क्या किया है, सिंपल देखिए। इन एंटर यू हैव टू एंटर अ नंबर दैट इज एक्सेप्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्कैनफ। इफ आई इज इक्वल्स टू 1, सो प्रिंट एफ यू हैज एंटर द 1। अब यहाँ पर करली ब्रेस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट स्कोप जो होता है वो सिंगल लाइन का होता है। तो सिंगल लाइन का मतलब कितना होता है, एक लाइन। तो एक लाइन अगर हमारे पास में, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दी करली ब्रेस। तो एक लाइन के लिए का। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ स्विच में। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्विच। नीचे लेके जाता हूँ। यू हैव टू यूज दिस स्विच कीवर्ड। क्या पास करने वाले हम, एक वैल्यू। कहाँ से आ रही है वैल्यू, आई में से। हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर खत्म होगा। इसको नीचे लेके आते हैं। नीचे वाला जो है इसको कमेंट लगा के बंद कर देते हैं हम, गड़बड़ कर देगा ये। लॉजिक लिखा था हमने उसको हम अभी अलग से लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो जाएगा स्विच में। स्विच मतलब हमारे पास में बटन है। बटन हमको कौन सी प्रेस करनी बताना, तो केस पहला है 1, यहाँ पे देंगे हम कोलन, यहाँ लिखेंगे printf। सिर्फ 1 लिख देते हैं हम।
अगर सिर्फ यही डिस्प्ले करना है हमको, और सेकंड थिंग यहाँ पर इसके नीचे लिखना है हमको ब्रेक। ब्रेक नहीं करोगे तो वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा मैं बताता हूँ आपको। केस टू हमको चेक करना है। देखिए हमने डाला था इफ वन आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज इक्वल्स टू टू, आई इज इक्वल्स टू थ्री। यहाँ पर चेक होता है। ये वन मतलब क्या हो रहा है कि हियर इट इज गोइंग टू चेक वेदर इफ आई इक्वल्स टू वन। ये यहाँ पर चेक होता है। तो लिखा था इफ दिस इज इक्वल टू दिस। केस इज इक्वल्स टू वन मतलब होता है, यहाँ पर चेक होता है आई इक्वल्स टू वन। देखिए ये हमने केस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है आई इज इक्वल्स टू वन। ये चेक होगा कहाँ पर, यहाँ पर। और इफ में जब जाते हैं दैट इज इक्वल्स टू इफ आई इज इक्वल टू वन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है सो देन इट विल मूव टू द printf स्टेटमेंट। वट एवर बी द कोड वी आर राइटिंग इन हियर दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एंड इट विल बी मूव आउट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। सो इसको निकाल देता हूँ मैं अभी। ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या करेगा, ये जंप करेगा टू द केस टू, और हमको केस टू पर जंप नहीं करने देना है बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एंड देयर। So we have to keep I is equals to 2, so we have to display the, we have to print the value that is 2, and one more we have to write here, that is for the case 3. So case 3 printf 3 and okay. चार हो गए हमारे पास में, और एक होता है हमारे पास में डिफॉल्ट। सिंटेक्स में होता है बाय डिफॉल्ट एक, जैसे एल्स लिखते हैं वैसे यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर वहाँ पर इफ में हमने क्या लिखा था, वी हैव रिटर्न द एल्स स्टेटमेंट, सो हियर वी विल राइट द डिफॉल्ट। सो def wrong number entered। बस इतना रखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। चलो ठीक है, बस इतना ही करना है। अब जो हमने नीचे में ये जो कोड लिखा हुआ है, बोथ कोड आर दी सेम। इफ आई इज इक्वल्स टू वन एंड देन वी हैव टू गो टू द प्रिंट स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, स्विच में कर्ली ब्रेस नहीं लगाते। कर्ली ब्रेस लगाने से क्या होता है कि वो स्कोप पता लगता है। जैसे यहाँ पर लगा दिया हमने, ये कर्ली ब्रेस दिख रहा है आप लोगों को। सो स्कोप स्टार्ट फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेस एंड एंड विद दिस कर्ली ब्रेस। सो ये अब हम एस स्विच में हम शो नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक से क्या होता है कि यहाँ पर ये हम एंड हो रहा है, किसको एंड कर रहे हैं, वी आर एंडिंग दिस केस वन। सो केस वन इज गोइंग टू बी एंड हियर, मतलब केस वन का स्कोप हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक। क्या होता है, इसको तो हमने बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कमेंट। चलो वन एंटर किया, वन आंसर आया बराबर। सेकंड टू, टू आया फिर से, थ्री, थ्री बराबर है फोर। अब देखते हैं सिक्स, एंटर रॉन्ग चॉइस। ठीक, इसका यूज कहाँ पर कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे परफॉर्म करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बराबर। आप मुझे चॉइस दोगे कि सर आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना बताइए। सो हम यहाँ पे, ये इसमें कुछ डाउट हो तो बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एनीवन? No, sir. नो सर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए आप। चलिए आगे। यस सर। Yes, sir. ओके देखिए हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है addition, subtraction, डिवीजन। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, और नीचे हम बोलेंगे एंटर योर चॉइस। हमारी चॉइस कहाँ से होगी, वन से लेकर फोर तक। ठीक, सी ए स्मॉल में। हाँ, केस वन किसके लिए बनेगा,
यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे फॉर द एडिशन। उसके बाद केस 2 बनेगा फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद केस 3 किसके लिए बनेगा? फॉर द मल्टीप्लीकेशन। केस 4 किसके लिए बनेगा? फॉर द डिवीजन। मैं आपको एक बना के बताता हूँ, बाकी के 3 आप लोग बनाओगे। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. चलो। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए हम पहले डिस्प्ले करेंगे 1 फॉर एडिशन। सो चेंज करते हैं। हम करते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन डाल दिया मैंने भी। सो 1 फॉर एडिशन, आगे स्लैश एन, उसके बाद डाल देते हैं 2 फॉर ये हो गया, और एक डाल देते हैं हम चेक करते जाते हैं प्रॉपर। देखिए 1 2 3 4 आ गया हमारे पास में बराबर। अब हमको एंटर करना है, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे एक स्पेस आ रही है, इसको निकाल देते हैं हम। वन टू फोर डाल दिया। जो एंटर करोगे दैट विल गो टू दिस पार्ट। आई पे आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमको यहाँ पर क्या परफॉर्म करना है? एडिशन ऑफ द टू नंबर्स। सो इंटर टू नंबर फॉर एडिशन। अब एडिशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर हमको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम एम एन, एम एन। बस सम करना है, सम। चलो, ये होने के बाद यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनफ। स्कैनफ डी, इंटीजर लिया हुआ है हमने, सो दिस विल बिकम परसेंट डी, परसेंट डी। एम और एन दो वेरिएबल लिए हुए हैं, सो दिस विल बी एम और एन, ठीक। बट सम इज इक्वल्स टू एम प्लस एन। डेफ एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक, एक ही लिखा हमने, बाकी के नहीं लिखे मैंने। सो एक हम वन जैसे एंटर करेंगे, यू विल गेट
you will switch to the addition, और addition में आने के बाद it will display the message enter two numbers for addition. Here it will accept the two numbers %d, ampersand m, ampersand n, दो नंबर का एक्सेप्ट हो जाएगा. यहाँ पर sum is equals to m और n के बाद it will display the addition और यहाँ से ब्रेक कर लेंगे इसको. So compile it. Done. आ गया. enter two number. So देखो गलत हो गया हमारा, चेक करते अभी हम. पहले 1 कहाँ गया हमारा, 1 ठीक है. कंपाइल रन. 1 कहाँ गया हमारा, 3 4. चलो गलत आ रहा है, करते हैं हम. कहाँ गलत हो रहा है देखते अभी. printf 1 for addition, 2 for this, 3 this. उसके बाद इसको नीचे ले लेते हैं हम. स्लैश n सब टू नंबर्स यहाँ पर आएगा %d. सर वो वहाँ पे एम्परसेंट सम नहीं लिखा तो चलेगा? क्या वो एम्परसेंट सम हटा के सिर्फ सम लिखा तो? सॉरी वहीं पे गलत हो रहा हो. पूरे 4 नंबर आ गए हमारे पास में. फर्स्ट ऑप्शन एंटर किया हमने. फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड इज 4, 3 + 4 7, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा. आपको सेम परफॉर्म करना है. देखिए लिखने में थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है हमारे पास में. देखिए 7 आ गया. सेम यू हैव टू डू इट फॉर दी सब्सट्रैक्शन. यहाँ पर सब्सट्रैक्शन के लिए लिखिए. उसके बाद थर्ड में आएगा फॉर दी मल्टीप्लीकेशन, फिफ्थ फोर्थ में आएगा फॉर डिवीजन, और लास्ट में डिफॉल्ट डालेंगे. अब डिफॉल्ट क्यों रिक्वायर्ड है हमारे पास में, बिकॉज वी हैड इनिशियली स्पेसिफाइड दैट यू हैव टू एंटर दी choice between 1 to 4. If anyone is entering the 5, 6, 7, 8, 9, 10, so in that case the user must display the message or get the message that whatever the particular person has entered is a wrong option. So for that option we have this default option. Clear? Any doubt? नो सर. No, sir.